Welcome back to the channel Chemistry is Life. In today's lecture, we are going to learn about the nomenclature of alcohols. As you know that we have started the series for the nomenclature of organic compounds. In that series, today is the 5th day of the nomenclature. Previous there are 4 videos for the nomenclature, part 1 to part 4. Okay, in that we have already completed nomenclature of alkane, alkene, alkyne, and the first video is for the basic information about the organic compounds, their nomenclature rules and all that. So in today's video, first I will tell you the definition of alcohols, what does alcohol means, then the general representation for the alcohols. After that we will see the classification of alcohols on the basis of 2 factors, and after that we will conclude our main point, that is nomenclature of alcohols. So let's start now. Alcohols, we know that alcohols are these are the type of organic compounds, right? Alcohols are the organic compounds in which these are attached, okay, attached to the alkyl groups, correct? Alcohols attached to the alkyl groups, by which, okay, the functional group of alcohol, what is that? The functional group of alcohol is OH, right? Okay, the alcohols are those organic compounds which are characterized by the presence of this OH group. Alcohols are characterized by the presence of this OH group, right? In which structure there is a presence of this OH group, we call it as a alcohols. Now there will be one OH group, 2 OH group, 3 OH group, right, or many OH groups. But in the organic compounds, when there is a presence of OH group, that compounds are called as alcohols, right? And this OH group is attached to which? Attached to allyl or aryl rings. Okay, when it is attached to aryl ring, it is called as phenol. That is a different point, right? When OH group is attached to the phenyl ring, that compounds are called as phenols. But when this OH group is attached to alkyl group, these are called as alcohols. This R means any other alkyl group. This R is a symbol for alkyl groups. So OH group attached to the alkyl group are called as alcohols, right? Alkane, everything that is okay. R means it can be alkane, it can be alkene, it can be alkyne, anything. R means simply alkyl groups. Alkyl में सभी आ गए फिर, है ना? So इस तरह से OH group attach होगा अगर alkyl group को, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? Alcohols बोलेंगे, right? Now these alcohols are classified in different types. Now we will see definition. समझ में आ गई? Alcohol किसको बोलेंगे? Alcohols are the organic compounds which are characterized by the presence of this OH group. Okay, there will be 1, 2 or more OH groups. If they are present, that structures are called as alcohols. Now the classification of alcohols or the types of alcohols. Now when we come to the classification, it is first of all classified on the basis of the presence of OH group, the position of the OH group, the location of the OH group. Okay, now the first type is primary alcohols. Primary alcohols, if this OH group is attached only single carbon, these alcohols are called as primary alcohols. It is the first type. This type is classified on the basis of location of the OH group, presence of OH group. Okay, now the second type is secondary alcohols. If this OH group is attached to that carbon which is attached to 2 different alkyl groups, right? देखो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप अटैच है इस कार्बन को अटैच है, बट ये जो कार्बन है इधर से अल्किल ग्रुप है, इधर से अल्किल ग्रुप है ना? यानी कि 2 अदर अल्किल ग्रुप्स को अटैच है ये वाला कार्बन, और ये कार्बन को OH ग्रुप अटैच है. इसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल. इसको प्राइमरी क्यों कहा? बिकॉज दिस OH ग्रुप इज अटैच टू ओनली single carbon. This is primary alcohol, this is secondary alcohol. And if we talk about the tertiary alcohols, then what happens? The carbon on which OH group is attached, suppose this carbon is there, the carbon to which this OH group is attached is further attached to 3 different carbons. These are called as tertiary alcohols. Okay, it means that this carbon attached to 3 different alkyl groups, so that type of carbon is called as tertiary alcohols. This is secondary alcohols, this is primary alcohols. Got it? These are the types of alcohol on the basis of presence of OH group. Okay, now there is another classification on the basis of number of OH groups. नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी कि कितने OH ग्रुप अटैच हैं
उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन भी है। उसमें नंबर 1 आएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। चलो इसका नाम में पहले देखेंगे क्या है। मोनोहाइड्रिक, मोनो मीन्स सिंगल, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप। हियर हाइड्रिक रेफर्स फॉर द OH ग्रुप, यानी कि ऐसा अल्कोहल का टाइप है जिसके अंदर कितने OH ग्रुप है, देयर इज ओनली सिंगल OH ग्रुप। सपोज दिस इज ओके, या फिर मैं सिंपली ROH भी लिखा तो भी चलेगा, है ना। R मीन्स एनी अल्किल ग्रुप, तो ये वाला अल्किन है सॉरी CH3CH2, ये अल्केन को एक OH ग्रुप अटैच है ना, इसका नाम है इथेनॉल। अभी नाम कैसे आ गया हम इसके बाद देखने वाले नॉमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है। सिंपली बस याद रखो इस पे कितने OH ग्रुप अटैच है, सिर्फ एक, इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। दिस इज अ वन टाइप ऑफ दैट इज इन द स्ट्रक्चर व्हेन देयर इज ओनली वन OH ग्रुप, दैट अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। सेकंड इज डाइहाइड्रिक alcohols, the type of alcohols in which how many alcohol group is there in this compound. Here there is the presence of 2 OH groups like this, correct. Di means 2, so here OH are present on the same structure, so there are 2 OH groups. This compound is called as dihydric alcohol. The name of this compound is ethylene glycol. सिंपली कॉमन नेम इज ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 2 OH ग्रुप अटैच हैं। दीज आर क्लासिफाइड अंडर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ओके। एंड द थर्ड वन मोनोडाई एंड नाउ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, in which there are presence of how many OH group, now 3 OH group. Suppose this structure is there, now this structure contain 3 OH group attached to the same structure, and the name of this compound is glycerol. Common name is glycerol. IUPAC नेम क्या होगा हम आगे आने वाले जब देखेंगे, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, glycerol. So in this way the classification of alcohol is the second classification based upon number of OH group. If there is only one OH group, that is called as monohydric alcohols. If there are 2 OH group, called as dihydric alcohols. If there are 3 OH group present on the same structure, are called as trihydric alcohols. Now after that we are going to the point for the nomenclature of alcohols. So now the next topic about the alcohol is the nomenclature of alcohols. Now we have seen the nomenclature of alkane, alkene, alkynes in the previous videos. We have seen the rules. The first rule says select the longest chain. Second rule says the functional group should get lowest possible number, right, in this way. And we have followed one formula. What was the formula? Secondary prefix, then primary prefix, then word root, then primary suffix, then secondary suffix. We know the formula, okay, and we know all the word root also. Now in the nomenclature of alcohols we will follow the same rule, okay. Now in this alcohol, suppose the general representation is like this, ROH. This is general representation of alcohols. R means any alkyl group. Suppose अगर मैं यहाँ पे पहला alkyl group ले रहा हूँ CH3OH, क्या ले लिया, CH3OH, एक ही कार्बन है, राइट, एक कार्बन, एंड वी नो दैट कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड. तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ये सिंगल कार्बन, कितने एच हैं इसको, 3 एच है, और ये एक्स्ट्रा इधर क्या ऐड हो गया, OH, है ना. इसका अगर मैं कॉमन फार्मूला बनाऊँ कैसा बनेगा इसका फार्मूला, कार्बन कितने हैं, एक ही है, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 4, CH4 और एक ऑक्सीजन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH4O. तो ये अल्कोहल है, ये कार्बन, 3 हाइड्रोजन और ये OH. नाउ अपने को पता है जैसा अपना फार्मूला क्या बोलता है, पहले सेकेंडरी सब प्रीफिक्स को लो, कोई और मिथिल ग्रुप है, कोई और सब्स्टिट्यूट अटैच है क्या, इसको नहीं है. बाद में क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोलेगा, रिंग है तो साइक्लो लो, स्पायरो कंपाउंड्स होंगे स्पायरो लो, कोई है क्या ऐसा यहाँ पे, नहीं, प्रीफिक्स तो पूरे कट हो गए. अब बात किसकी आएगी, वर्ड रूट की. तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मिथ. द वर्ड रूट फॉर 1 कार्बन इज मिथ. सिंपल CH3 है, मतलब अल्केन का टाइप है, तो क्या लगाने का, मिथेन, मिथेन, ओके, वर्ड रूट भी हो गया. अब बारी आती है प्राइमरी सफिक्स की. तो ये सफिक्स के अंदर क्या होता है, अगर अल्केन अल्केन सिंगल बॉन्ड है तो अपन ANE लगाते हैं, जैसे आपने यहाँ लगाया, राइट. तो ये ANE तो लगा दिया अपन ने, ये अपना प्राइमरी सफिक्स हो गया, है ना. अगर डबल बॉन्ड होता तो अपन क्या लगाते थे, ENE. अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो
वाई नहीं लगाते थे, करेक्ट। तो ये तो नहीं पड़ गए। अब क्या बच रहा अपना, अगर अपने कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो कहाँ पे आएगा, सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ना अपना, तो अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए OH के लिए जो सफिक्स है वो क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OL। द फंक्शनल ग्रुप इज OH एंड द सफिक्स इज OL। ओके, सो वी हैव टू नाउ अप्लाई दिस OL, क्योंकि ये नाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स आना बाकी है अभी। तो आगे क्या लगाएंगे हम, OL लगाएंगे, ठीक है। ये तो नाम हो गया, बट देयर इज वन अगेन रूल है ना, इंग्लिश वोकेबलरी में एक रूल होता है क्या, अगर दो वॉवेल्स एक जगह आते हैं तो क्या करते हैं, वी डिलीट वन वॉवेल है ना। देयर आर 5 वॉवेल्स, व्हाट आर दोज, A, E, I, O, U है ना, ये 5 वॉवेल्स हैं। ये 5 वॉवेल अगर एक साथ कहीं पे आते हैं तो व्हाट वी डू, वी जस्ट डिलीट वन वॉवेल। सो हियर यू डिलीट E हियर, E और O दोनों भी वॉवेल्स है ना, तो E को डिलीट करो, जो बच रहा है उसको ज्वाइन करके लिखो, क्या बन गया, मिथेनॉल, करेक्ट। दिस इज द नेम फॉर द CH3OH, दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल। अगर मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकेंड CH3CH2OH। नाउ इन दिस कंपाउंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन्स। रूल क्या बोलेगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 1 2, कहीं भी गए तो 1 2 है, सीधे सीधा चेन बना दो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या है, अपना जो OH है ये क्या है, दिस इज आवर मेन फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है अपना मेन फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड रूल सेज दैट द कार्बन ऑन विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन को क्या होना, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से नहीं, कहाँ से करेंगे, ये कार्बन से, क्योंकि ये कार्बन को OH अटैच है। सो 1 and 2 नंबरिंग भी हो गई। कोई और सब्स्टिट्यूट अटैच है क्या, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ है नहीं है, तो सर सीधा सीधा आपने क्या आएगा, अब वर्ड रूट, कितने कार्बन के वर्ड रूट है, 2 कार्बन। द वर्ड रूट फॉर 2 कार्बन इज इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सो ANE एंड OH, द सफिक्स फॉर OH इज OL। तो यहाँ पे OL लिख तो क्या करना है, याद रखना है, 2 वॉवेल्स आएंगे तो E को डिलीट कर देना, क्या बन गया, इथेनॉल, करेक्ट। दिस इज इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, करेक्ट। दीज आर द अल्कोहल्स। नाउ थर्ड, इफ CH3 CH2 CH2OH, now what will you do, वर्ड रूट, 3 कार्बन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिंगल स्ट्रेट कंपाउंड है ना। ये तो अभी सिर्फ इजी बेसिक ले रहा हूँ मैं अभी। 3 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड, बिकॉज द कार्बन विच ऑन विच द OH इज अटैच शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर 1 2 3, नो एनी सब्स्टिट्यूएंट, राइट। सो व्हाट इज द वर्ड रूट फॉर 3 कार्बन, prop, carbon carbon single bond you can see, so AN, and for alcohol suffix is ON, direct, the name is propanol, correct, in this way, got it. These are the basic rules are there. Now the fourth number, if compound is like this, now you can tell the direct name, try this by your own, I will give you some seconds. There are 4 carbon, select the longest chain, 4 carbon bute, carbon carbon single bond, AN, alcohol suffix OL, butanol, correct. Okay, if 5 carbon chain is there, pentanol, 6 carbon chain, hexanol, 7 heptanol, 8 octanol, 9 nonol, ठीक है ना, correct. Now we will see some complicated examples now. These are the very easy. If there is a presence of any other functional group or some substituents like that, I will write here suffix of alcohol OL, correct. No, if suppose example, I think 5 number example is that, now what will you do, the first rule says select the longest chain. How many carbon you will get in the longest chain, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, same. So you can, and the rules what says, you are selecting the longest chain, our main functional group should be inside the longest chain.
आप इस तरह से चेन नहीं लोगे 1 2 3, हाँ ये होगी मेरी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, इसको छोड़ दोगे। ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है ये उस लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, दिस कार्बन शुड बी इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट चेन। तो एक तो आपके पास दो ऑप्शन है 1 2 3 या फिर 1 2 3, दोनों तरफ से 3 कार्बन आ रहे हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन वाली स्ट्रेट चेन की सेलेक्ट कर लो, राइट। नंबरिंग करनी है, दैट कार्बन शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑन विच आवर OH ग्रुप इज अटैच, दिस इज आवर मेन फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कर लो 1 2 3, होगी नंबरिंग। अब यहाँ पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 मीन्स मिथाइल, एंड दिस मिथाइल इज नॉट इन द लॉन्गेस्ट चेन। तो जो ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में नहीं होता वो क्या होता है, सब्सटीट्यूएंट, करेक्ट। द ग्रुप विच इज नॉट इन द लॉन्गेस्ट चेन इज कंसिडर्ड एज अ सब्सटीट्यूएंट, एंड वी नो दैट सब्सटीट्यूएंट का नाम वर्ड रूट से पहले लिया जाता है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सफिक्स। तो कौन सा सब्सटीट्यूएंट है, मिथाइल है। कितने नंबर कार्बन पे अटैच है, 2, राइट हेयर 2 मिथाइल। नाउ any other substituent is there, no, the word root, how many carbons in the word root, 3, the word root for 3 carbon prop, carbon carbon single bond, so AN, and finally our main functional group, the suffix for OH is OL, so what become the names, 2-methyl propanol. This is simply the alcohol, that name is 2-methyl propanol. Okay, now the next example. This is the next example. First of all, the rule says select the longest chain. तो कौन सी chain select करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, I am getting 5 carbon chain. Okay, if I go through like this 1 2 3, एक 3 की मिल रही है, एक 5 की मिल रही है, then again no any option 1 2 3 4 5, इधर से आए तो 5 मिल रहे हैं, है ना। अगर ऐसे भी आ गए 1 2 3 4 5 तो भी 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 तो भी 5 कार्बन की चेन है। तो सिंपली इस तरह सेलेक्ट करेंगे, ऐसे जाओ बस, ठीक है। तुम्हारा एक सब्सटीट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल इज योर वन सब्सटीट्यूएंट, है ना। और उसी कार्बन पे क्या अटैच है, OH ग्रुप भी अटैच है। चलो नंबरिंग कहाँ से देंगे, आवर दैट कार्बन विच इज हैविंग OH ग्रुप शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अगर हम यहाँ से देंगे तो कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5, बट अगर नंबरिंग राइट साइड से दिए तो कितना आएगा, 1 2 3 4, इधर से 2 उधर से 4, लोवेस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली 2 इज द लोवेस्ट नंबर, सो वी विल डू नंबरिंग फ्रॉम दिस वे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट, हाउ विच कार्बन इज अटैच, सेकेंड, सो 2 methyl, after that no any substituent is there, so for 5 carbon the word root is pent, single bond AN. Now pentan, now you here you have to mention the position of OH group also, क्योंकि अभी तक जितने भी देखे वो पहले कार्बन को अटैच था, बट यहाँ पे कहाँ पर है वो, इट इज अटैच टू द सेकंड नंबर कार्बन, सो यू शुड हैव टू मेंशन द लोकेशन ऑफ दैट OH group also. So pentan to, absolutely right, pentan to OL, in this way the name of the, and now tell me this alcohol is of which type, primary, secondary or tertiary. This alcohol, remember this carbon is attached to this carbon, here carbon and here carbon, तीन कार्बन को अटैच है ये। तो जब कोई कार्बन 3 कार्बन को अटैच है और OH ग्रुप अटैच है तो ये कौन सा टाइप का हो गया, दिस इज आर ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स, है ना, क्योंकि 3 कार्बन अटैच है ना इसको, टर्शरी मीन्स 3, साइड से 3 कार्बन है तो ये कौन सा हो गया, टर्शरी कार्बन हो गया, करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज now rule says select the longest chain, 1 2 3 4, single chain is there of 4 carbon, correct. Second rule says the carbon on which the OH group is attached should get lowest possible number. तो नंबरिंग अगर यहाँ से देंगे तो 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से देंगे तो भी 2 ही नंबर मिल रहा है, कहीं से भी दे दो फिर 1 2 3 4, एनी सब्सटीट्यूएंट, नो, just mention the word root, there are 4 carbons, the word root for 4 carbon is but, carbon carbon single bond AN, here there are
2 OH groups are there, so you should have to write with positions also. Okay, butane 2 3, butane 2 3, 2 OH groups are there, so use di, and the suffix for alcohol OL. Butane 2 3 diol is a simple name for that compound. Okay, next example. Here, remember, there are two different functional groups. One is alcohol, okay, halogens are also there and double bonds are also there, and for this you should have to know the priority order. क्या पता होनी चाहिए? Priority order, कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है. करेक्ट. फर्स्ट सबसे पहले हम उसकी लिस्ट निकालते हैं यहाँ पे कि प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह से होती है. देखो, द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे कि एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आए तो किसको ज़्यादा भाव देंगे हम, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. नंबरिंग सबसे कम उसको देनी चाहिए, ऐसा कौन होगा. तो नंबरिंग देखो, उसकी प्रायोरिटी देखो, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड. वो अपने इसमें है क्या, नहीं है, यहाँ पे एसिड तो नहीं है. उसके बाद होता है अल्डिहाइड. एसिड के बाद कौन है, अल्डिहाइड. फिर उसके बाद कीटोन, फिर अल्कोहल्स, है ना. तो ये ऊपर के तीन हैं क्या अपने स्ट्रक्चर में, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे नहीं है. तो ये तो यहाँ नहीं है. अपना पास क्या है, अल्कोहल है. यानी कि इनके बाद अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल को क्या मिलनी चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी. तो यहाँ पे अपना अल्कोहल है ना, तो समझ में तो आ गया आप कि अल्कोहल जिस कार्बन को अटैच है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे हम. दैट कार्बन शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर. पहला रूल क्या बोलता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4, स्ट्रेट चेन है एकदम सिंपल. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई. उसके बाद क्या बोलेंगे, नंबरिंग शुड बी डन. दिस इज आवर मेन फंक्शनल ग्रुप. ये अपना क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है ना. बाकी ये सब है जो अल्कोहल के बाद है. फिर ये सब अल्कीन, अल्काइन, ये सब कौन से हैं, अल्केन. फिर हेलोजेंस, सब अल्कोहल के नीचे हैं. अल्कोहल गेट्स हायर प्रायोरिटी. अल्कोहल का नंबर कम से कम मिलना चाहिए. तो 1 2 3 एंड 4 हो गया. करेक्ट. एक ब्रोमो जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिखेंगे. उसकी पोजीशन क्या है, 2 ब्रोमो. दिस इज 2 ब्रोमो. वर्ड रूट फॉर 4 कार्बन, that is bute. Word root for 4 carbon is bute. Now presence of double bond you should show first. डबल बॉन्ड है तो उसको पहले, क्योंकि ये प्राइमरी सफिक्स है, इसको पहले लिखेंगे. तो कौन से कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हुआ है, 3, ब्यूट 3. सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड इज ENE, राइट, ENE, एंड 1 OL. अब E क्यों डिलीट करें, क्योंकि वापस से 2 वावल्स एक साथ आ रहे थे तो ये डिलीट कर दिया हमने. क्या लिखे, सिर्फ ब्यूट 3EN 1 OL, राइट. ब्यूटीनॉल ऐसा नाम होता था अगर एक ही कार्बन पे होते थे तो. बट डबल बॉन्ड है 3 नंबर कार्बन पे और OH ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे, तो अब लोकेशन दिखानी पड़ेगी उसकी. ब्यूट 3EN 1 OL. इन दिस वे द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस. If compound is like this, here what rule says, select the longest chain. तो यहाँ पे कार्बन है, शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 number carbon chain you are getting. Correct. Any other substituent is there? No. So simple, write the word root first, hept. Word root for 7 carbon is hept. Carbon carbon single bond is there, so AN, heptane. Presence of OH groups, how many are those, 3 are OH groups. Okay, and now show the numbering. अगर नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2 मिलेगा. दोनों तरफ से कम नंबर मिल रहा है. 3 4 5 6 एंड 7. सो हेप्टेन सबसे पहला कितने नंबर पे, 2, फिर 4, फिर 6. अब 3 है तो क्या लेंगे, ट्राई. और सफिक्स फॉर अल्कोहल OL. गॉट इट. दिस इज हेप्टेन 2 4 6 ट्रायोल.
name of this compound. If compound is what our rule says, select the longest chain. Select the longest chain, select कर लो 1 2 3 4 5 6 7 राइट 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन मिल रही है, कहीं से भी जाओ 7 मिल रहे हैं तो 1. अब नंबरिंग कैसे देंगे कि अपने ये देखो टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है. नंबरिंग करने के दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ से या फिर यहाँ से. अपना OH जो है अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए. अगर हम नंबर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से करेंगे तो 5 नंबर मिल रहा है. एंड इफ यू डू फ्रॉम दिस 1 2 3, तो 3 नंबर सबसे कम है. 2 3 4 5 6 7 करेक्ट. अब क्या नाम दो, चलो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है एक, पहले इसको लो 2 मिथाइल, then no other substituent, write the word root for 7 carbon, hept. 2 methyl hept, position of double bond 4 en 3 ol. Correct. As simple as that. This is all about the nomenclature of alcohols. जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आएंगे और इस जब हम मिक्स वाले एग्जाम्पल जब लेने वाले हैं तो और एग्जाम्पल आएंगे तब और प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं. जस्ट दिस वाज ऑल अबाउट द definition of alcohols. Then we have seen types of alcohols, classification of alcohols on the basis of 2 factors, and then we have completed the nomenclature of alcohols. Just remember always the priority order. Okay, on the basis of priority order you can just simply give names for the organic compounds in which the alcohol is present. So in the next video lecture we will do the nomenclature of aldehydes and ketones. Okay, so thanks for watching this video. Keep watching, keep learning. See you in the next video.